Hello everyone, hope all of you are doing well. So let's begin with today's session with the recap of the previous session. Let's see what we learned in the previous session. अपने पिछले सेशन में हमने कवर किया था एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स को और दो तीन एसक्यूएल की डीडीएल कमांड्स को. Now, as far as the SQL constants were concerned, we covered all the constants till date, whether it is primary key, not null, or foreign key, default, check. All these constants we have already covered. Now, there is a little, note regarding this that few of you might have tried this in your laptop or in your desktop if you have installed MySQL, that the check constants, we are able to apply the check constant while creating the table, or we can also apply it by using the alter command. In the MySQL versions prior to 8.0.16, we are able to include the check constant, but it was not working. That means even if we apply the check constants, it do not show us the desired output because it is just ignored by the MySQL engine. It was a fault in the previous versions, whereas now we are able to apply it with the help of say triggers, or even we can apply it with directly that MySQL versions 8.0.16 and later on versions. Previous versions we are not able to say we are able to put the check constants into the table, but the desired output was not there because it was ignored. Now, in the previous session, beside constants, we also learned how to create a table by using the create table command. Right? There was a well syntax for that. That create table, table name, then all the list of the columns with each column defined with a comma separation. First column name, then its data type, then the constant, then comma, then the next column name, its data type, size, constant if any, and so on. You can define n number of the columns. Then the alter command was the second DDL category command that was used to modify the structure of table, whether it is to add a new column, or it is used to modify the existing column, and it is used to add the constant, or it is used to remove the constant, or either it can be used to give the name to the constant, and so on. And the third category was the drop. Third type of the command in the DDL category was the drop. Drop means removing either a table from the database or removing a column from the database. So drop command was also covered in the previous session. In today's session, we are going to cover few more DDL commands like truncate and rename. Second one is DML command, insert, update and delete. So let's begin with the today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एक कमांड और पहली कमांड है रीनेम. नाउ in MySQL, the rename command can be used to rename a column or to rename a table itself in the database. Let's first learn how to rename a column. For renaming a column in MySQL, suppose we have already created a table, say we have already created table ABC, and there is a column named address in that table. Now we want to change the name of the column address from address to ADDR. That means previously it is address. Now we want to make it ADDR. So how to change it? The syntax or the grammatical rule is alter table, table name, then comes the change. So see, we are not using rename here. We are using change to rename a column. So change, then the old column name. Old column name will be address. New column name, after putting the space, new column name is ADDR. Then its data type along with the size. So data type is varchar 60. So see the example how we are going to change the existing column name in a table to a new column name. See, alter table, table name, that is ABC, change, then comes the old column name, that is address, space देके उसके बाद आएगा नया नाम क्या रखना है, the new name to be given to this column, then its data type, और उसके बाद उसका size. Once you press
semicolon and press return key, enter key, it will say query okay, the changes will be implemented. Now for changing the table name, we have a rename command rather than the change. So the keyword changes here: rename table, then the old table to then the new table name. For example, our old table name was ABC. Now I want to make it ACB. So how to make it? Rename, आगे टेबल आ गया, सेम ये दोनों चीजें सेम आ गई, जो कीवर्ड है इट रिमेन्स सेम. सो रीनेम देन टेबल, फिर ओल्ड टेबल का नाम आ गया एबीसी, फिर टू आ गया कीवर्ड, उसके बाद न्यू आगे न्यू टेबल का नाम आ गया एसीबी. सो इट्स सिंपल टू रीनेम द एग्जिस्टिंग टेबल नेम फ्रॉम द ओल्ड टेबल नेम टू द न्यू टेबल नेम. ठीक है. नाउ next DDL command is the truncate command. The truncate command is used to remove all the records from the table. It is just like I have already given you the example. Suppose we have got a pen drive and there are few files and folders inside that pen drive, and if we format that pen drive, the whole data is lost. Same case, we are not going to pick or choose few or specific ones records from the table. We are going to remove all the content of the table. So to remove the whole content of the table, the command uses truncate. So syntax is truncate table, table name, simple. उसके बाद कोई कंडीशन नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक रो को डिलीट नहीं करता, ये तो सारे का सारा रिकॉर्ड डिलीट करेगा. The command will not destroy the table structure. The table structure remains intact. It only reinitializes the primary key. The truncate command is different from the delete command. How? Delete command belongs to the DML category, whereas truncate command belongs to the DDL category. Delete command के साथ हम specific row को delete कर सकते हैं, truncate command के साथ हम specific row को delete नहीं कर सकते. Delete command जो truncate command है वो reinitialize कर देता है टेबल को, like a newly created table, formatting की तरह हो गया. एक में पेन ड्राइव आप फॉर्मेट करते हैं तो सारे का सारा डाटा गया, और दूसरे में आप सिर्फ उसके कुछ फाइलों को सिलेक्ट करके डिलीट करते हो तो वो अलग टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया. नाउ the next category of the command is the drop command. Now all these DDL commands, whenever you will use the DDL command, एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी DDL command का नाम लिखोगे उसके बाद टेबल कीवर्ड आएगा. से create table, table name, drop table, table name, rename table, table name, similarly truncate table, table name. So table keyword is must. Now the drop command is used to completely remove a table from the database, or completely remove a column from the table. So drop table, table name, drop table if exist, ये एक क्लाउज है. if exist मीन्स तभी ड्रॉप करेगा अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा, नहीं तो एरर देगा आपको. आप दोनों काम कर सकते हो, डायरेक्टली ये कमांड चला सकते हो ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, और यू मे राइट डाउन ड्रॉप टेबल if exist then the table name. If exist is the clause which ensures that it only drops the table if it exists in the database, right? Then let's move on to the little bit of practical aspects. All of you will I suppose I have already given these notes to you. You must try to create a table named student. I have already given what should be the column names. The admission number column should have a numeric data type. For this you may use int. The size is 3. Then constant primary key to be applied to it. Then name column, table column name, the size data type should be varchar, size should be 20, and constant not null to be applied. Then class column, that is the field class, again numeric, you may use int. It should be 2 size, so that you may enter 1 2 3 4 5 6 7 8 up to 12 class. Then section, only one alphabet should be there, so either A, B, C, D section. So we have taken char 1. Then fees, again in numeric, 10,2 means there should be total 10 digits, and 2 out of that should be fixed for decimal places, that is 2 decimal places should be there out of 10. So 8 और 2 में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, तो इसके लिए हम डेसिमल यूज करेंगे. सो दिस इज आवर होम टास्क. लेट्स सी प्रैक्टिकली बिफोर वी मूव अहेड how to create this table and how to observe the structure of the table. So I'm moving on to the practical portion. Let's
invoke the MySQL. First we need to apply the password. Right now, here I'm going to see what all databases are already existing in my MySQL. Show databases. So these all are the databases names. So out of this one I need to select and I need to get inside it and use it so that I can create a table inside it. So I'm going to use 11th SQL. So use 11 SQL. This is simple. So now you will be able to create the table directly. If you come here after supplying the password to the command prompt and you try to create the table, you will not be able to do so. So let's create the table. Student create table, आगे table का नाम student, then is to be started here. First column name was ADNO, that is admission number. Int, I'm taking the size as 4, making it a primary key. That's all regarding the first column. So put the comma, and then the second column. Second column was name, varchar 20, not null भी है, so name varchar size to be given in the parentheses brackets, name varchar 20, and constant applied is not null, comma. You will write in the capital letter, small letter, doesn't matter, it is case insensitive. ठीक है, कहीं पर भी आप मिक्स करते हुए लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. The third column is class, I suppose class numeric है और size 2 है, so class int size is given as 2. Then comes the section, the data type was char, size was 1. अगर आपका यहाँ पर एक्सपोज करो आपने ये जो स्क्रीन है ये फुल नहीं रखी हुई है, इतना रखा हुआ है, इसके बाद आप सोच रहे हो कि आगे नहीं आएगा, मुझे दिखाई नहीं देगा जो कुछ है, आप कॉमा लगा के एंटर प्रेस करके अगली लाइन में आ सकते हो बिना कोई और सिंबल इंसर्ट किए. सिर्फ कॉमा लगाना और एंटर प्रेस करना, अगली लाइन में भी लिख सकते हो. एग्जाम में आप ऐसे ही सेकंड लाइन में लिख सकते हो नोटबुक के ऊपर, ठीक है, आंसर शीट में. सो नेक्स्ट कॉलम इज फीस. So I am going to make it decimal as per data type. Size is 10,2. So I have finished off with the definition of all the columns. See, we have taken admission number, name, class, section, fees. So let's see admission number, name, class, section, and fees. So once I am satisfied that total required number of the column have been inserted, now I will be closing the parenthesis. ये वाली जो स्टार्ट वाली parenthesis थी इसको यहाँ क्लोज कर दिया, सेमीकोलन लगाया, एंटर प्रेस करोगे, क्वेरी ओके. So that means your table was created without any error. If error comes, you have to do certain modifications into that so that you complete that table creation. Now I want to see the structure of the table. So describe table command is there. Describe the name of the table, that is student. So DESC, then the table name student. So here is my table. Constant is shown here. ठीक है, नल वैल्यू यहाँ पर भी नहीं अलाउ करेगा, नल वैल्यू नेम भी नहीं अलाउ करेगा, प्राइमरी की एडमिशन नंबर को बना, बाकी डाटा टाइप्स उनके साइज आ रहे. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड द टेबल. देयर इज वन मोर कमांड इज देयर टू सी द in detail the structure as well as the constants, that is show create table then table name. नोट कर लेना इसको. to see the table along with the to see the structure of the table along with the constants. अगर हमने किसी कांस्टेंट को कोई नाम दे रखा है तो वो भी वहां आएगा. ठीक है. शो क्रिएट टेबल टेबल नेम. सो हियर इन द डिटेल create table student admission number int not null, name not null, class null, value can be accommodated here, null value can also be accommodated, fees में null value accommodated, primary की कौन सी admission. So everything is given. ठीक है. in detail along with the constant. If you want to see the structure of the table, we use the command show create table table. ठीक है. show create table तो फिक्स ही है, आगे टेबल का नाम जो भी होगा वो आ जाएगा. So before I begin with the next category, let's give me the overview of the DD and DML commands.
This we have done. Those who have already installed, they may perform this activity at home. Now, the next category of command is the DML command. The DML command means data manipulation command. Now, these type of the commands are dealing with the content of the table rather than the structure. Previously, we have covered DDL commands, which deals with the structure of the table. Maybe the how many columns you are adding, what are the data types of the columns, whether you are removing a particular column or you are adding a certain constraint or you are modifying certain columns or modifying certain constraints. All these things were dealing with the structure of the table. So DDL commands, they deal with the structure of the table, whereas DML commands, they deal with the data inside the table, the content of the table. So whenever you need to modify the content of the table, you need to see the content of the table, you need to insert the content in the table, we will be using the DML commands. So we have four major DML commands. One is the insert, second is the update, third one is the delete, and fourth one is the select. Select is to fetch the data, to display the data from the database, whereas insert is put the data inside the tables. Update is to change the content, change the data inside the table, and delete is to remove the data based on certain criteria, right? So one by one we will be covering all these. Now DML commands are not auto committed in the various the most popular database RDBMSs, but MySQL is an exception. In MySQL, DML commands are also auto committed. We will be learning in later on sections that how to make it false, that is how to make it behave like not committing it them automatically. उनका ऑटो कमिट मोड को हमने जीरो करना है, फॉल्स करना है. वो कैसे करेंगे हम लेटर ऑन सेक्शंस में देखेंगे. फिलहाल आप ये देख के चलो कि जो भी आप डीएमएल कमांड यूज करोगे उसको आप अंडू नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये एक MySQL ऐसा है जिसके अंदर ये भी सेव हो जाती है ऑटोमेटिकली डीडीएल की तरह. ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनको हमें खुद को सेव नहीं करना पड़ता. ये जैसे ही कमांड एंटर करके हटोगे ये सेव हो जाएगी, ये अंडू नहीं होगी. उसके लिए हमें इसका जो ऑटो कमिट मोड है उसको जीरो करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा, फिर ये ऑटोमेटिकली सेव नहीं होंगी, फिर हमें इनको खुद की कमांड से सेव करना होगा. ओके, सो लेट्स लर्न द फर्स्ट कमांड, इंसर्ट कमांड. उसके लिए मैंने एक टेबल लिया है. से आई हैव टेकन द टेबल नेम एज स्टूडेंट. आई एम नॉट टेकिंग द प्रीवियस टेबल that we will see in practically. Here I have taken only the three columns inside the table: s underscore id for admission number, s name second column है, और age है वो third column. अब ये हम मान के चल रहे हैं कि ये वाला टेबल स्टूडेंट टेबल हमारे पास है, उसके अंदर तीन कॉलम्स हैं, एस आई डी, एस नेम एंड एज. अब इनके अंदर हमें डाटा इंसर्ट करना है. तो उसके लिए ग्रामेटिकल रूल क्या है, इंसर्ट कमांड यूज होती है विद इनटू कीवर्ड, दैट इंसर्ट इनटू आगे आएगा टेबल का नाम. अब कोई भी डीएमएल कमांड हम यूज करेंगे वहां पर टेबल कीवर्ड यूज नहीं होगा. डीडीएल कमांड्स के साथ टेबल कीवर्ड यूज होता था, यहाँ पर टेबल कीवर्ड यूज नहीं होगा. यहाँ पर सीधा टेबल का नाम यूज होगा. से इंसर्ट इनटू आगे टेबल का नाम, आगे स्पेस देके वैल्यूज कीवर्ड, फिर ब्रैकेट लगा के वन बाय वन पहले जो पहला कॉलम है उसकी वैल्यू पहले, फिर सेकंड कॉलम की वैल्यू, फिर थर्ड कॉलम की वैल्यू. ठीक है, ये देखो insert into student values 101, then Adam, then 50. यहाँ हम assume करके चल रहे हैं कि पहली जो वैल्यू है वो SID है, सेकंड वैल्यू जो है वो नेम है, थर्ड वैल्यू जो है एज है. देन वी ऑलरेडी नो द सीक्वेंस. फिर ये काम करना है. अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता या फिर आप सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं, पहले आप नेम डालना चाहते हैं, उसके बाद आप एडमिशन नंबर डालना चाहते हैं और एज डालना ही नहीं चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा काम करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना है, आपने अपनी मर्जी से करना है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको टेबल नाम के साथ उसका कॉलम के नाम भी साथ में देने होंगे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में. जिस सीक्वेंस में यहाँ पर कॉलम के नाम लिखोगे टेबल नेम के साथ, उसी सीक्वेंस में आगे वैल्यूज एंटर करोगे. देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मैंने पहले के कौन से कॉलम का नाम लिख दिया टेबल नेम के साथ. यहाँ टेबल के नाम के साथ ऊपर वाले में कोई कॉलम का नाम नहीं दिया मैंने, यहाँ पर कोई कॉलम का नाम नहीं दिया, तो उसी सीक्वेंस में एंटर किया जिस सीक्वेंस में वो क्रिएट हुए होंगे. अगर मैंने यहाँ नेम दे दिया तो इस वाले सीक्वेंस में एंटर करूँगा. पहले मैंने फर्स्ट कॉलम का नाम दे दिया, से एस आई डी, सॉरी एस नेम दे दिया पहले मैंने, उसके बाद एस अंडरस्कोर आई डी, कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो वो फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, एस अंडरस्कोर नेम दिया वो पहले कर दिया, एस आई डी को बाद में कर दिया, उसके बाद स्पेस दे के वैल्यूज. अब जब मैं वैल्यूज डालूंगा तो मैं ये नहीं करूँगा कि 101 पहले लिख दूँ उसके बाद एडम लिखूँ, दैट विल बी रॉन्ग. क्या करना है आपको,
इसी सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस यहाँ आपने मेंशन कर दिया। ये सीक्वेंस कब मेंशन करना है? जब आप चाहते हो कि जब आपको नहीं पता है कि सीक्वेंस क्या है, टेबल के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, उसका पहला कॉलम कौन सा, दूसरा कॉलम क्या है, कौन सा है, आपको कॉलम के नाम पता है, फिर आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई कोई एक आध कॉलम छोड़ना है आप, तब आप ऐसा काम कर सकते हो, तो छोड़ उसी को सकते हैं। यहाँ पर आपका नोट नल नहीं लगा हुआ। तो वैल्यूज़ जो भी आप टेक्सचुअल वैल्यू डालोगे या डेट टाइप की वैल्यू डालोगे, टाइम टाइप की वैल्यू डालोगे, कैर हो, बैर कैर हो, डेट हो, टाइम हो, वो सभी को आपको इनक्लोज करना है सिंगल कोट्स के अंदर या फिर डबल कोट्स के अंदर। जैसे मैंने यहाँ एडम लिखा, तो एडम को सिंगल कोट्स के अंदर रख दिया, मैं डबल कोट्स के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। जो आप न्यूमेरिक वैल्यू डालोगे, चाहे डेसिमल टाइप की चाहे इंट टाइप की, उसको आप बिना किसी कोट्स के डालोगे। जैसे एडमिशन नंबर था, स्टूडेंट आईडी थी, वो इंट टाइप की है, तो उसके लिए हमने 101। ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पर इंट टाइप की है, यहाँ पर टेक्सचुअल टाइप की है? वो हमें टेबल के स्ट्रक्चर के पता लगेगा। जब आप टेबल का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करोगे, DESC आगे टेबल का नाम, तो आपको बताएगा कि कौन सा कॉलम में डाटा जो है इंटीजर टाइप का स्टोर होना है, कौन से कॉलम में डाटा जो है वो टेक्सचुअल टाइप का स्टोर होना है। वैसे भी आप जब खुद क्रिएट करोगे तो आपको पता ही होगा कि विच कॉलम इज हैविंग व्हाट काइंड ऑफ द डाटा टाइप। ठीक है, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। सपोज करो कहीं आपने नल वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो वो कैसे है? तो उसके लिए दो तीन डिफरेंट तरीके हैं। फर्स्ट मेथड इज इंसर्ट इनटू टेबल नेम। आपने पहले कॉलम का नाम आईडी दिया, दूसरे का नेम दिया, तीसरा आपने दिया ही नहीं, एज वाला दिया ही नहीं, तो क्या होगा? एज वाले में ऑटोमेटिकली नल ले लेगा। तो आईडी की वैल्यू डाल दी 102, नेम में डाल दिया एलेक्स, एज वाली दी नहीं, तो उसकी जगह ऑटोमेटिकली नल नहीं होना। सपोज करो तो आप खुद का वैल्यू डाल से इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मैंने आगे कोई कॉलम नाम नहीं दिया, इसका मतलब सारे कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करने जा रहा हूँ मैं, और उसी सीक्वेंस में इंसर्ट करूंगा जिस सीक्वेंस में वो क्रिएट हुआ। पहला SID था, फिर S नेम था, फिर तीसरा एज था। तो SID की जगह 102 डाला, और नेम की जगह एलेक्स डाल दिया, और एज की जगह क्या लिख दिया मैंने? नन। तो वहाँ उसको किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम्प्टी सेट। empty set of the values are represented with a null. Then suppose I want to insert more than one record at a time। ये नहीं कि एक रिकॉर्ड एंटर किया, फिर एंटर प्रेस किया, फिर दूसरी कमांड टाइप की, फिर दूसरा रिकॉर्ड एंटर किया, फिर तीसरा, एंड सो ऑन। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं एक से ज़्यादा रिकॉर्ड, मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक ही कमांड के थ्रू एंटर कर सकूँ। तो उसके लिए कमांड क्या देनी है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, आगे स्पेस देके वैल्यूज, फिर पेंसिल्स के अंदर पहला रिकॉर्ड। आप एंटर प्रेस करके नीचे आ सकते हैं अगली लाइन में भी, या फिर यहीं कंटिन्यूसली लिख सकते हैं। तो पहले रिकॉर्ड में उसका एडमिशन नंबर दे दिया, नेम दे दिया, फिर उसका आगे एज दी, फिर प्रिंसेस क्लोज की, कॉमा लगाना है, सेमीकोलन नहीं लगाना, फिर एंटर प्रेस किया, फिर अगला कॉलम दे दिया, अगली रो दे दी। तो ये एक रिकॉर्ड एंटर हो गया, फिर दूसरा रिकॉर्ड एंटर हो गया, फिर तीसरा। ऐसे ही आप 4 5 10 जितने आपने करने कर लो। वंस यू हैव फिनिश्ड ऑफ इंसर्टिंग द रिकॉर्ड्स, आप क्या कर सकते हो? लास्ट में सेमीकोलन लगाइए, एंटर प्रेस करिए, तो वो आपके सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर करें। ठीक है, the next type of the command that next is the we will be inserting these records into a table। अब ये वाले रिकॉर्ड्स मुझे टेबल के अंदर इंसर्ट करने हैं। सो लेट मी फिनिश ऑफ दिस प्रैक्टिकली फर्स्ट। सो आई एम कमिंग ओवर टू दिस। थोड़ा सा जूम करना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि मुझे दोनों देखने हैं, तो मैंने इन दोनों को यहाँ स्क्रीन पे रखा है। ये टेबल है, और यहाँ पर अब मैं इस वाले टेबल में ये रिकॉर्ड्स एंटर करने जा रहा हूँ एक एक करके। पहले एक रिकॉर्ड एंटर करके देखेंगे, फिर मल्टीपल रिकॉर्ड भी मैं आपको एंटर करके दिखाऊंगा। तो कमांड क्या थी इंसर्ट रिकॉर्ड को? पहले तो हमारे पास टेबल कौन सा वो देख लेते हैं, DESC स्टूडेंट, ये हमारे पास टेबल है। इस टेबल के अंदर हमने ये वाले रिकॉर्ड्स एंटर करने, तो उसके लिए कमांड है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम था स्टूडेंट, उसके बाद स्पेस देके वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ मैं उसी, क्योंकि मैंने कॉलम के नाम यहाँ मेंशन नहीं किए, तो वैल्यूज़ इसी सीक्वेंस में एंटर करूँगा जिस सीक्वेंस में मेरा टेबल क्रिएट हुआ। पहले एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड फीस। तो सबसे पहले एडमिशन नंबर ले लिया मैंने से 101। ठीक है, सॉरी 111 दिया हुआ यहाँ, टेबल इसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली। तो ये कॉलम नेम आ गया, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू थी तो कोई कोट्स नहीं लगाया। अगला है अनुजैन, द नेम, तो उसको कोट्स में रखना है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, चाहे कैपिटल में भरो आप स्मॉल में भरो, वो फर्क नहीं पड़ता। तो अनुजैन, कोट्स को क्लोज किया, कॉमा, उसके बाद क्लास उसकी 12th है, न्यूमेरिक है, तो मैंने कोई कोट्स नहीं लगाए। उसके बाद कॉमा डाल के सेक्शन ए है, अगेन करेक्टर में है, तो
कोट्स में लगा दिया, कॉमा वैल्यू उसकी जो फीस है वो 2500 है। एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया, मैंने ब्रेंसेस लगाई, सेमीकोलन लगाया, यू कैन सी मैसेज आ गया क्वेरी हो। इसका मतलब है हमारा टेबल के अंदर पहले रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया। चेक करने के लिए हम एक और डीएमएल कमांड का यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट का, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल में। फॉर टाइम बिंग जस्ट हैव दिस, इसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसके सिलेक्ट कमांड को। ये देखिए आपके पास एक रिकॉर्ड है। अब मैं एक से ज़्यादा रिकॉर्ड एंटर करना चाहूँगा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स। सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट द नेक्स्ट फ्यू रिकॉर्ड्स। उसके लिए आप जो प्रीवियस कमांड यूज़ की होती है उसको भी आप लेके आ सकते हो। आप पैरो की प्रेस करूँगा अगर मैं, तो ये देखिए प्रीवियस कमांड आ गई, एक बार फिर से प्रेस करूँगा तो वो एक और प्रीवियस कमांड आ गई। अब मैं यहाँ चेंज करने जा रहा हूँ वैल्यूज़। यहाँ आके सेकंड वैल्यू थी 222 और जो नेम ऑफ द कैंडिडेट स्टूडेंट था वो है हमारे पास सामने मोहित शर्मा। मोहित शर्मा आ गया। क्लास उसकी 11th है तो ये आ गया क्लास। सेक्शन उसका बी है, डिलीट करके बी कर दिया। और फीस उसकी 4500 है तो डिलीट करके 4500 बना दिया। अब मैं यहाँ पहुँचा, भी मैं एंटर नहीं प्रेस करूँगा क्योंकि मैं मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर करने जा रहा हूँ। तो मैंने एक कर लिया, वैल्यूज़ लगा के एक कर लिया, कॉमा लगाऊंगा, एंटर प्रेस करूँगा, नीचे आऊँगा, फिर से प्रेसेस लगाऊंगा। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड 333 वाला, उसका नाम क्या है, केपी गुप्ता। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के उसकी क्लास है 12, उसका जो सेक्शन है वो अगेन बी है और जो उसकी फीस है दैट इज़ 3000। ये भी हो गया। एक बार फिर से कॉमा लगाऊंगा, मैं आगे एंटर प्रेस करके भी आ सकता हूँ या यहीं से नेक्स्ट ले सकता हूँ। नेक्स्ट वाले में है नेक्स्ट 444 कॉमा द नेम इज अजीत कुमार, देन द क्लास इज 10, the section is A, fees is 2000, कॉमा लगाया, आगे आया, एक बार फिर से करता हूँ मैं 5, नेम इज नंदिनी, नेक्स्ट, कॉमा लगा के क्लास लिखी एंड देन सेक्शन कोर्स में आएगा, करेक्टर है। उसके बाद फीस अगेन 3000 है, ऊपर वाले की फीस 2003, यस डन, इसकी 3000 आ गई। एंड द लास्ट कॉलम लास्ट रिकॉर्ड इज 666, नेम इज रोहन शर्मा। ठीक है, इसकी क्लास है 11, सेक्शन है बी, उसके बाद 25। इसमें बहुत ध्यान से करना क्योंकि एक भी एरर आ गया तो सारा दोबारा करना पड़ेगा आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स में। यही एक ड्रॉबैक है, कहीं गड़बड़ हो गई। insert into this values 20, मोहित शर्मा 11, 3, ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5। समवेयर एरर, बैक भी नहीं जा सकते इसमें। यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ पर कोट्स लगाना भूल गया मैं, तो ये सारे का सारा बेकार गया। यहाँ पर आप इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यही मैंने बोला था आपको, चलो अच्छा हुआ हमें एरर आ गया और आपको भी पता लग गया कि अगर ऐसा आता है तो क्या होगा। यहाँ पर हमने मिस किया है कोट्स। ठीक है, अगर ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है फिर आपको कंट्रोल ब्रेक करना है। इसको कंट्रोल ब्रेक करते ही कीबोर्ड से कंट्रोल और ब्रेक प्रेस करिए, या फिर आपको फिफ्टी करना पड़ेगा। दोबारा से इसको लेके आ रहा हूँ। यूज 11 SQL और DESC स्टूडेंट, जो हमने एक बार रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ है वो ऐसे एज इट इज ही रहेगा। ये जो मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर कर रहे थे उसमें एरर आया था फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड ऑलरेडी है इसमें।
चलो फटाफट एक और कमांड यूज़ कर लेते हैं। insert into student values, दो रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ मैं फटाफट। और इसमें श्योर करेंगे कि कोई एरर ना आए। अनुजैन कोर्स बंद हो गए। क्लास 12 सेक्शन ए फीस 2500 एक हो गया, कॉमा लगाया, दूसरे वाले में आ गए इक्वल टू, देन कोर्स के अंदर मोहित शर्मा, देन क्लास उसकी 11 सेक्शन इज बी फीस इज 4500। लीजिए एक मिनट, ओह लेट्स मूव बैक। इसमें हमें यहाँ पर हमने अनुजैन ऑलरेडी इंसर्ट कर रखा है, तो इसकी जगह हम प्राइमरी की का वो एरर दिया कि हमारे पास ये रिकॉर्ड ऑलरेडी है, एक मैंने ऊपर हमने यहाँ पर ऑलरेडी कर रखा है ये 11 222 में हम यहाँ मोहित को रख देंगे। मोहित शर्मा क्लास 11 सेक्शन बी फीस इज 4500। ठीक है, हमारे पास के नेक्स्ट रिकॉर्ड में हम ले लेंगे 3 वाले को। 3 में है केपी गुप्ता, उसके बाद क्लास 12 सेक्शन बी फीस है 3000। क्वेरी ओके आ गई। अब हम कमांड लगाएंगे, दो रिकॉर्ड हमने इकट्ठे कर दिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये रिकॉर्ड हो गए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप द DML command insert is clear to everyone. Next time we will be covering the update and delete command, though there it will take a very few seconds to do so, but I suppose already 32 minutes are there, so uploading के लिए बहुत टाइम लेगा, तो मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ आज के सेशन। नेक्स्ट we will start with the update command, delete command and the select command, right? So take care, have a nice day.